أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت به السرور. ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਬਕਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਦੀ ਰਿਜ਼ਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਰੂਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਖਲਕ ਲਕੁਮ ਮਾ ਫਿਲ ਅਰਦ ਜਮੀਆ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈ ਕਿ ਹਲਾਲ ਔਰ ਤੈਯਬ ਖਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅਗਰ ਸ਼ਰਈ ਔਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਲਾਲ ਰਾਸਨ, ਹਲਾਲ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਸੂਲ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਅਗਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਲਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਸੇ ਕੋਈ ਨਾਪਾਕੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਨੂਰ ਈਮਾਨ ਦੀ ਬਕਾ ਦੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਹਰਾਮ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਫਰਮਾ ਇੰਨਮਾ ਹਰਮ ਅਲੈਕੁਮੁਲ ਮੈਤਤ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹਲਾਲ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਬਗੈਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਹ ਕੀਤੇ ਮੁਰਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਗਾਂ ਭੈਂਸ ਬੱਕਰੀ ਭੇਡ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਬੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਵੈਂਦੀ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੈਂਦੀ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। दूसरी चीज़ वदम, खून बहरहाल हराम होएगा। कुरान करीम में दूसरी जगह दमे मसू है, यानी वो खून जो वक्त ज़बा निकलदा या जानवर नूं जख्म ला के उस चो खून कढ़ लेना या जानवर दी रग चो खून कढ़ लेना। तारी जिस वेले भुखे होंदे तो वो जानवर दी रग जख्मी करके खून कढ़ के पी लेंदे। अफ्रीका ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ ਅਕਵਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰਗ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਗਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕੱਢਿਆ, ਉਸੇ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀ ਲਿਆ, ਟਾਨਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਰਮਾਇਆ ਖੂਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਾਮ, ਖਾ ਉਹ ਵਕਤੇ ਜ਼ਬਾ ਨਿਕਲੇ, ਖਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਜ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਸੇ 'ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੂਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਗ 'ਚ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਖੂਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਤਫਰੀਹ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦਾ ਦੇਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਟੀਕੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਦੀ ਰਗ 'ਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਈਸਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਇਸ ਖੂਨ ਦਾ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ
ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਲੈਣ ਔਰ ਇਹ ਤਜਾਰਤ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਭੰਗੀ ਚਰਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਵੇਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ 100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਖੂਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह ਈਸਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ 'ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਵਲਖਮਲ ਖਨਜ਼ੀਰ, ਔਰ ਖਨਜ਼ੀਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਜੁਜ਼ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਅਗਰਚੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਖਮਲ ਖਨਜ਼ੀਰ, ਖਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਲੇਕਿਨ ਖਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ 'ਤੇ तमाम आइम्मा ਦਾ इत्तेफाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ इरशादात चो साबित है और उम्मत के आमाल चो और सुलहा और सलफ सालिहीन के तरीके चो यह साबित है कि खनजीर का हर उज़्व, खा उसके वाल होन, खा उसकी खल होवे, खा उसका गोश्त होवे, खा उसका खून होवे, बल्कि खनजीर की असल हराम है। और उजरत ते खनजीर मसलन ट्रक च कोई लद के लै वैंदा या खनजीर चराने ते मजदूरी करदा या उन्होंने पालने ते कोई नौकरी करदा, तो वो नौकरी वो ट्रक च लदन की मजदूरी वो भी हराम हो जाएगी। यानी खनजीर तो किसी तरह का माली इस्तेफादा करना या उसनों खुराक या गज़ा बनाना या उसके किसी जुज़ तो दवा बनाना, ये सारिया चीज़ां हराम होंगी। ना उसका गोश्त, न चर्बी, कोई चीज़, बल्कि उस तो इस्तेफादा कुल्ली तौर पर इस्लाम ने हराम करार दे दिता। मगरब में मुसीबत यह है कि दंद साफ करने वाले ब्रश बननगे तो उन्हें खनजीर के वाल ला देंगे। अमूमन जुत्तियां दे अंदर जिहड़ा चमड़ा लगदा वो अमूमन खनजीर का ला देंगे। बल्कि मैं कई दफ़ा एक दिन तो इंग्लैंड बड़ी मैं कोशिश की कि कोई ऐसी जुत्ती मिले जिसके अंदर खनजीर का चमड़ा ना हो, उत्ते गाय का घोड़े का दूसरा मिल जाता, लेकिन अंदर खनजीर का चमड़ा होंदा है। बड़ी तलाश तो बाद कोई एक मिली, लेकिन मुश्किल है कि कोई अच्छी जुत्ती मिल जाए। और खनजीर के चमड़े की एक अजब ये निशानी होंदी है कि उसके वाल इकल्ला एक वाल नहीं होंदा, उसके जिथे भी होंदे ने 3-3 4-4 वाल होंदे ने। वो खल की दबागत तो बाद भी वेखिए ना तो हर वाल की जगह 3-3 4-4 वालों का निशान होंदा। बंदे नूं समझ होवे तो उसका अंदाज़ा हो सकता। इस तरह खनजीर के बाद अज्जा दवावां च पा देंदे, बाद अज्जा खनजीर चर्बी पाउंदी है साबण, वलायती साबण जिहड़े आउंदे उन्हां बाद खनजीर की चर्बी पा देंदे। लेकिन एक गल है कि वो जिहड़ियां चीज़ां बाहरों आउंदियां वो उसते अगर अज्जा लिख दें तो लिख देंदे, जिन्हां ते खनजीर का लिखिया होवे उन्हां दा इस्तेमाल जायज़ नहीं होएगा या तहकीक की जाए। बहरहाल खनजीर की असल हराम है। और अगली चौथी चीज़ है वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जिस ते गैरुल्लाह दा ना लग जाए। इस दियां मुख्तलिफ ताबीरान कि उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह केड़ा, एक तो उलमाए हक ने फरमाया कि गैरुल्लाह दे ना ते ही ज़बह कीता जाए, यानी बजाय अल्लाह अकबर आखने दे अल्लाह तो इलावा किसी देवी देवता या जिसकी पूजा की वैंदी है या किसी का भी ना लैके वो छुरी चलाई जाए, हराम हो जाएगा। दूसरा जिहड़ा इससे ज़्यादा नाजुक मामला है वो ये है कि गैरुल्लाह की रज़ा वास्ते उसनों मुख्तस कर दिता जाए, छोड़ दिता जाए और वो सिफत मनी जाए गैरुल्लाह जिहड़ी अल्लाह च मनी जाती। जिस तरह हिंदू बुतां विच या देवी देवता विच औसाफ बारी मनदे ने, ये देवी औलाद देंदी है, ये देवी दौलत देंदी है, ये देवी सेहत देंदी है या ये देवता जिहड़ा फतह देंदा। हुण उस दे नां ते अगर कोई जानवर उन्होंने छोड़ दिता कि उसकी रज़ा वास्ते ये जानवर मुख्तस कर दिता गया, उसनू अगर कोई मुसलमान तकबीर पढ़ के भी ज़बह करेगा तो हलाल नहीं होएगा। मा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही विच आएगा। इसी तरह अगर ये अकीदा किसी खानका, किसी बुजुर्ग, किसी वलीउल्लाह नाल, किसी अल्लाह के नेक बंदे नाल रखा जाए और ये तवक्को रखी जाए, एक ये तवक्को होंदी कि किसी नेक की जगह पर अल्लाह को दुआ की जाए कि अल्लाह मैं इस बाबरकत जगह पर खड़ा या तेरे नेक बंदे की खिदमत बैठा, मेरी दुआ कबूल फरमा लै, ये तो दुरुस्त है।
यकीनन फ़र्क है, ज़मीन के खित्तियां भी फ़र्क है और अफराद भी फ़र्क है। और इसका सबूत भी मिलता कि तुसी हरम शरीफ तो बाहर नमाज पढ़ो तो एक नमाज का सवाब है, हरम के अंदर जाके हरम की हद के अंदर पढ़ो तो उस एक नमाज का सवाब 1 लाख गुना होगा। और इत्थे भी बाद लोगों को गलती लगती है, समझते हैं कि 1 लाख नमाज की कज़ा अदा हो गई। ये नहीं होता, नमाज एक ही अदा होती, कज़ा भी करो तो एक ही कज़ा होती है, सवाब 1 लाख गुना वध पैंदा, सवाब 1 लाख नमाज का मिलता। इसी तरह बाद लोग कज़ा उमरी पढ़ते हैं जी, वो जी अपना रमज़ान की फलानी तारीख में नमाज पढ़ी जाए, वो ना ही कज़ा उमरी, कोई सारी उम्र दी नमाजा उसे ही कज़ा हो। किसी एक नमाज नाल सारियां कज़ा नहीं होंदी। एक नमाज अगर तुसी कज़ा पढ़ीए तो उस दे बदले एक ही कज़ा अदा होएगी। और तरीक़ेकार यह होंदा कि जिन्हां लोकां कुछ वक़्त गफलत गुजर गया, नमाजा नहीं पढ़ियां, फिर तौबा की, अल्लाह ने तौफीक दी, नमाजी हो गए, और कोई अंदाज़ा है 5 साल 4 साल 6 साल 10 साल 20 साल नहीं पढ़ियां, तो इतना अरसा हर नमाज के नाल अगर एक नमाज कज़ा कर ली जाए तो रोज़ाना 5 नमाजा तो कज़ा होनी होनी। अल्लाह गफूरुर रहीम है, एक ऐसा तरीका बना ले जिसका बोझ भी ना बने, छोड़ भी ना सके दे, और अल्लाह करे होंदा भी रहे। तो फिर जिस काम लग पवी, अगर राज भी मौत आ जाए तो अल्लाह करीम गफूरुर रहीम है, सारी माफ़ फरमा देगा। लेकिन किसी एक दे बदले एक ही अदा होएगी। इसी तरह वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह विच वो जानवर भी आ जाएंगे जिहड़े असी मुख्तस कर देने, ये फलां बजुर्ग के नां दा जी, ये बैल, ये बकरा, ये गाय, ये फलां बजुर्ग के नां दी जी, वो साड़ी बड़ी निगाहदाश्त करदा जी, बीमारियां तो शफा देंदा जी, माल च बरकत देंदा जी। और अगर किसी का यह अकीदा है कि औसाफे बारी उसने अल्लाह के बंदे नूं शरीक कर लिया, ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम नूं खुदा दा बेटा मनदे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबी, साहिब किताब नबी, उन्हां ते किताब नाजिल हुई और अल्लाह ने उन्होंने जिंदा आसमाना ते उठा लिया, अल्लाह के नज़दीक मौजूद हैं। फिर उन्होंने नुज़ूल उसी ज़मीन दे और फिर दीन इस्लाम दी और दीन मुस्तफ़वी अला साहिब सलात वसलाम दी जिहड़ी है फतह का सबब बननगे और जिहाद करनगे और दीन इस्लाम नूं फिर नाफज करनगे। इस सब के बावजूद, उन्होंने सारे कुर्ब के बावजूद उन्होंने खुदा का बेटा मनने वाला मुशरिक। हुण वो अगर उन्होंने खुदा का बेटा मनदे उन्होंने रज़ा वास्ते और उन्होंने खुशनुदी वास्ते कोई जानवर उन्होंने नां ते मुख्तस कर लाएगा तो फिर उसनों भावें तकबीर पढ़ के ज़बह करो हराम होगा। ये दुरुस्त है कि अल्लाह के नबीन, अल्लाह के रसूल, साहिब किताब, लेकिन इस बंदे का अकीदा गलत है और इसकी वजह तो अगली चीज़ें गलत होनी जाएंगियां। इसी तरह मुसलमाना एक रिवाज, बल्कि साढ़े बड़े सगीर हिंदुओं नाल मिल के ज़्यादा रिवाज आ गए कि फलां बजुर्ग ते मुर्गे चढ़ाए जान जी, उसकी बरकत नाल साढ़े कम होंगे। उन्होंने मुर्गियां ते तकबीर पढ़ के भी ज़बह करो तो हराम होंगे। नज़र न्याज इस गर्ज ना चढ़ाई जाए कि जी इसकी वजह तो औलाद मिलेगी, इसकी वजह तो सेहत मिलेगी। ये सारे औसाफे बारीन किसी नेक नूं नेक समझ के उसकी नेकी तो फ़ायदा हासिल करना। जिस तरह ज़मीन फ़र्क है कि हरम तो बाहर एक नमाज है, हरम की ज़मीन पढ़ो तो 1 लाख का सवाब है। इसी तरह मस्जिद तो बाहर नमाज का सवाब कम है, मस्जिद ज़्यादा, इकली का कम है, बाजमात का ज़्यादा। जगह ना फ़र्क पाउंदा, अफराद ना फ़र्क पाउंदा। इसी तरह हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु नूं दुआ मंगने वास्ते अर्ज़ किया गया कि बारिश नहीं हो रही, दुआ करो तो अर्ज़ की या अल्लाह मैं तेरे नबी का चाचा, यानी आपने अपना रिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जोड़ के आपके हवाले नाल दुआ मंगी, अल्लाह ने बारिश दी। तो किसी वलीउल्लाह दी मज़ार ते कहा अल्लाह मैं तेरे नेक बंदे दी जगह ते खड़ा, मेरी गल तू कबूल फरमा, ये मैं बाबरकत जगह, ये तो दुरुस्त है। लेकिन अगर उसे वली नू पुकारा जाए कि तू मेरी मदद कर और तू मेरी ये ज़रूरत पूरी कर, तो शिरक हो जाएगा। फिर इस तरह अगर कोई उस वली दे नां ते मुर्गे देंदा, दुंबे देंदा, बकरे देंदा, तो अगा फिर उन्होंने तकबीर भी पढ़ते रहो, हराम ते तकबीर पढ़े, हराम हलाल नहीं होना, फिर वो हराम ही रहेगा। बल्कि इससे फुकहा ने बड़ी सख्ती फरमाई है और एक अजीब गल लिखी है
कि हराम नू अगर तकबीर पढ़ के हलाल करना चाहता, मसलन किसी ने चोरी का कोई जानवर बकरा डंगर बैल मुर्गा नप लिया तो हुण हराम है वो वास्ते, लेकिन वो तकबीर पढ़ के ज़बह करके खाना वो हलाल हो गया, तो वो हराम नू हलाल समझण दे जुर्म विच इस्लाम तो खारिज हो जाएगा, क्योंकि जेड़े अल्लाह दे हराम हैं उन्होंने हलाल समझना कुफर है, और जेड़े अल्लाह दे हलाल हैं उन्होंने हराम समझना कुफर है। तो वो चोरी का जुर्म या गैरुल्लाह दे नां दा जुर्म तो एक वखरा रह गया, हराम नू हलाल समझना जेड़ा ये उसमें इस्लाम तो खारिज कर देगा। ये मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, ये बहुत बड़ी मुसीबत है, और ये सारे मुसलमाना इदारा ये असल तो अल्लाह करीम ने तो काफर वास्ते हुक्म फरमाया, मुसलमान की तो सिफत ही नहीं कि काफर बुतां दी खुशनुदी वास्ते और अपने फर्जी खुदावां दी और माबूदां दी खुशनुदी वास्ते, जिन्हां नूं राज़ी करने वास्ते, या अगर वो फरिश्तियां दी पूजा कर देन या सूरज दी या अग दी पूजा कर देन, तो गैरुल्लाह तो जिसकी पूजा कर देन उसके नां ते जानवर छोड़ देंदे, जायदादा छोड़ देंदे, नज़र न्याज़ा चढ़ाते, पैसे देंदे, वो सारे ही उहिल्ला लिगैरिल्लाह दे विच आवेगा, उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह च आए कि सब हराम होएगा। लेकिन अज जिहड़ा है मरूरे ज़माना और बोझ ज़माना सदियों की दूरी पै गई बरक़ात नबवी और ज़ात नबवी अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम ना, और फिर बड़े सगीर हिंदू तहजीब ना मिल के इत्थों दे मुसलमान असी कुछ ज़्यादा ही वहम परस्ती का शिकार हो गए, तो बजुर्गों के नां ते चढ़ावे चढ़ाने इस ख्याल नाल, वैसे किसी बजुर्ग की कोई नेक समझ के खिदमत करदा वो हलाल है, जायज़ है, लेकिन अगर इस ख्याल नाल कि ये मेरी मुश्किल दूर करेगा या मेरी जी है दुनियावी ज़रूरियात पूरी करेगा, तो ये शिरक फिर सिफात है, ये सिफात अल्लाह दियाँ, इस मुशरकाना अंदाज नाल देगा तो बंदा भी मुशरक होएगा और वो चीज़ लैनी भी हराम होएगी, उसका इस्तेमाल भी हराम हो, चूँकि वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह विच आ गया। सो फरमाया तुहाडे ते हराम किया गया एक तो जानवर जिहड़ा मुर्दार हो जाए, दो जानवर जिहड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाहत फरमा दी कि साढ़े ते दो मुर्दार हलाल हैं, एक मछली एक टड्डी, ये दो ऐसे जानवर, टड्डी एक छोटा जिहा हुंदा जानवर, छोटा जिहा कीड़ा जिहड़ा हवा च उड़दा हुंदा, फसलां खा बैंदा, टड्डी दल उसनूं आखदे, इन्हां दा खाना भी हलाल है बगैर तकबीर दे। और मछली जिहड़ी पकड़ी जाए पानी चो और फिर वो मर जाए, उसनूं ज़बह करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मछली भी अगर पानी दे विच तभी मौत मर गई और मुर्दा मछली पानी ते तरन लग पई, क्योंकि मुर्दा मछली पानी दे तले नहीं रहिंदी, तो वो जिहड़ी तभी मौत मर गई वो मैतात आ जाएगी, मुर्दार च आ जाएगी, वो हराम होएगी, उसका खाना हलाल नहीं होएगा। हाँ तुसी पकड़ लईए, जाल पा नप ली, कांटे ना नप लीए, फिर उसनूं बाहर कढ़िया मर गई, वो हलाल होगी बगैर तकबीर दे। वरना कोई चीज़ तकबीर तो बगैर अगर मर गई तो वो मुर्दार हराम होएगा, खून हराम होगा, खनजीर हराम हो सी। इसी तरह खनजीर की तरह खनजीर और शराब और सूद, ये तीन ऐसिया चीज़ां जिन्हां दी असल विच हुरमत है। सूदी कारोबार करना, सूद ते गवाही देना, सूद के ज़राए इख्तियार करना, ये सारे ही हराम है। खनजीर दे किसे ज़रिए कोई फ़ायदा हासिल करना, ये सारे ही हराम है। शराब का रखना, बेचना, लद के लै जाना, उस ते उजरत लेनी, ये सारे ही हराम है। इन्हां दी असल विच हराम है और ये सारे हराम होंगे। और या फिर वो चीज़ां मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जिहड़ियां गैरुल्लाह दे नां ते मुख्तस कीतियां वैंदियां या गैरुल्लाह दे नां ते जिन्हां दी गर्दन कट्टी वैंदी, वो हराम होणगियां। फमन इत्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैह। हाँ अगर किसे नूं ख्वाहिश नहीं और नहीं वो पेट भर के खाना चाहता, लेकिन जिंदगी खतरे च, भुख नाल मरन लगा और सिवाय मुर्दार दे कोई शय नहीं लभदी, तो इतना को खा ले जिस नाल उसकी जान बच जाए, ये जायज़ होएगा उसके वास्ते, लेकिन हलाल नहीं होएगा, हराम हराम ही रहेगा। इत्थे अल्लाह ने हलाल नहीं किया, फरमाया फला इस्मा अलैह गैर बागिन वला आदिन, न तो उसा वो बगावत करके खा रहा होवे और नहीं हद तो ज़्यादा खाए,
यानी इज़तरार च मजबूर हो गया, भुख नाल मरन लग पिया। हुण अगर गज़ा उसके अंदर नहीं जाती तो वो मर जाएगा। तो नज़दीक कोई हलाल दस्तियाब नहीं, उस वेले खनजीर का गोश्त है या इल्ला बिही लगैर इल्ला है या कोई भी हराम चीज़ उसके नज़दीक है जी उसकी गज़ा बन सकती है। तो एक तो वो अल्लाह तो बगावत करके ना खाए, दूसरे है कि वो पेट भर के ना खाए, बल्कि इतनी खा ले जिसके नाल उसकी जान बच जाए। इससे गुनाह नहीं होएगा, चीज़ हराम ही रहेगी जी, हराम हलाल नहीं होएगा। फला इस्माल है, उसनू गुनाह नहीं होएगा। एक खाना उसके वास्ते अल्लाह माफ़ कर देगा, उसनू गुनाह नहीं होएगा कि इतनी खा ले जिसके नाल उसकी जान बच जाए। इस वास्ते इन अल्लाह गफूर रहीम कि अल्लाह बड़ा मेहरबान और बड़ा रहम करने वाला। ये उसकी रहमत का एक अंदाज़ है, ये उसकी मेहरबानियाँ का एक अंदाज़ है कि उसने उसते करम फरमा दिता और उसते एहसान फरमाया कि अगरचे उसने गुनाह किया लेकिन चूँकि उसकी इंसानी मजबूरी दरम्यान है अल्लाह पाक ने, इसका मतलब है कि इंसानी जान इतनी कीमती है कि उसनू ज़ाया करना हराम है। और अगर हराम रोज़ी किसी हद तक इस्तेमाल करनी पवे जान बचाने वास्ते, तो जान का बचाना फ़र्ज़ है और इंसानी जान की बहुत ज़्यादा कीमत है। और इसनू अल्लाह की राह ते नछावर किया जा सकता सिर्फ, वरना इसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। और सेहत की हिफाजत इस तरह ज़रूरी है कि सेहतमंद वजूद सेहतमंद सोच होएगी, सेहतमंद वजूद ही इबादत का हक अदा कर सकेगा, सेहतमंद वजूद ही रिज़्क़ के हलाल कमाने वास्ते ज़रूरी। सारिया चीज़ां एक दूसरे के वास्ते नाल ये ज़रूरी होंदियां वैंदियां और इन्हां ते अमल ज़रूरी होंदा लगा वैंदा। सो अल्लाह पाक ने बुनियादी उसूल इरशाद फरमा दिते, बाकी चीज़ों इत्थे तकसीम किया जा सकता कि कुछ चीज़ां जड़ियाँ शरीयत ने हराम करार दे दित्तियां, जिन्हां दी वजाहत नबी करीम सल्लम ने फरमा दी, वो हराम हो गई। उसूली तौर पर हर चीज़ की असल हिल्लत है, असलन हर शै हलाल है सिवाय इसदे कि नबी करीम ने उन्होंने हराम करार दे दिता। जड़ियाँ मना कीतियां शरीयत इस्लामिया ने, अगर उन्हों का अज के ज़माने साइंसी तजजिया भी किया जाए तो सारिया हराम चीज़ां जड़ियां इंसानी सेहत वास्ते भी सख्त मुज़र, ये इंसान के किसी कम नहीं आउंदियां। और जड़ियाँ इंसानी सेहत वास्ते मुफीदन उन्होंने हराम नहीं करार दिता गया। लोग आदन जी हूँ बीमार हो गया, वो घुट शराब का पी लीए तो सेहत होंगी, सेहत वास्ते शराब ज़रूरी नहीं। अगर सेहत वास्ते होंदा ज़रूरी तो अल्लाह इसमें हराम ही ना करता। इस तरह ये जड़ियाँ हराम चीज़ां इन्हें फ़ायदा नहीं, अगर जिन्हें चीज़ों अल्लाह ने फ़ायदा रखे आ उन्होंने हलाल किया। शराब फ़ायदा नहीं, अंगूर सीधा सीधा खाओ ना यार, अंगूर तो कोई हुरमत नहीं, अंगूर तो हलाल है। जौ खाओ, जौ हलाल है, जौ न तरका के शराब बना लो हराम हो जाएगा। इस तरह अंगूर खाओ हलाल है, अंगूर न तरका के तो शराब बना लो हराम हो। जी चीज़ इंसानी हवास गुम कर दे, वो नशावर ऐसी चीज़ जी हवास मुख्तल कर दे हराम हो जाएगी। तो अल्लाह पाक ने हराम दे ये जड़ी मुर्दार, खून, खनजीर और जिसते गैर अल्लाह का नाम लिया जाए और अमूमन जड़ियाँ चीज़ां हराम वन उन्होंने इन्हां चौज तकसीम किया जा सकता। ये ऐसे बुनियादी उसूल इस्लाम ने अता फरमा दिते। फिर नाल ये रियायत भी अता फरमा दी कि अगर किसी की जान जा रही है तो इंसानी जान कीमती है, उसनू बचाना ज़रूरी है। इस तरह जोड़ा खून दिता वैंदा मरीज़ नूं उत्थे ये इज़तरार भी होंदा कि अगर खून ना दिता गया तो दौरान ऑपरेशन मर जाएगा या इतना कमज़ोर मर जाएगा, वो इज़तरार भी उत्थे होंदा। तो अल्लाह पाक ने जोड़ा इज़तरारन जान बचाने वास्ते हराम खा लेंदा, फला इस्मा अलैह, उत्थे भी हराम हलाल नहीं होंदा, उसते वो खाने का गुनाह नहीं है। इन्नल्लाह गफूर रहीम कि अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम करने वाला। वाखिर दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह